Good afternoon. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. I am reading your comments on our video, Budget Highlights. Many of you are upset, and you may be right because government is on sales spree of many sectors. They have already mentioned the railway, ports, and other sectors. But still, I will give a advice from my experience. It is up to you to accept this advice or ignore it. Choice is yours. At present, we are at a very crucial stage of our career building. Two major exams are already over. Three more exams are going to happen: IBPS PO, RRB Office Assistant, and IBPS Clerk Main. If we get upset, it will only harm us. It will affect our performance in these examinations, and we may not be able to give our 100% in the exam. So my advice is, for the time being, ignore all these negatives and simply focus on examination, appear with 100% preparation, and after selection, you can review your decision. If something bad happens, you can decide whether to join or not. But at this stage, if you get panicky and if you lose the track, no other person will be loser other than you. Because when news comes, it takes a lot of time to get it into implemented. So I can only say we should not react on any news that is coming our way. Choices are limited. We have to be employed. So we should first focus to get the employment. Now, second question raised by some of the candidates is whether vacancies will come this year or not. Vacancies will definitely come. Vacancies will definitely come in banking as well as insurance. Now, whether these vacancies will be higher or lower, that we will discuss subsequently as more clarity emerges. Purpose of this channel is to keep you motivated. Bad news will come, good news will come. Sometimes if we over discuss bad news, it affects us, and that's why I always try to shield you from bad news. I always share good news to you to keep you in good humor. But whatever will happen, we will definitely discuss on this channel. As a parent, I am protecting you from hot winds. You have to understand that psyche. Winds are hot. But if I expose you to these hot winds, your skin will be burnt. As a parent, I am providing you shield. So remain in this shield. Don't try to get burned unnecessary. Focus on today. Exam is there. Prepare well for that. Get selection. You can still decide thereafter if something adverse happens or something good happens. Because nobody is sure. There are many things, those are declared. But whether that happens or not, last year the disinvestment target was around 2 lakh crore. Government could get only 11,000 crore. So the wishful thinking and reality makes a lot of difference. So we should not overreact. That is my advice to each one of you. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. बजट का मैंने वीडियो डाला है, उसमें मैं देख रहा हूँ तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं. कुछ लोग बहुत निराश हो गए हैं, परेशान हो गए हैं. कुछ लोग
ठीक ठाक कमेंट भी कर रहे हैं। देखो ऐसा है, अभी हम बहुत क्रूशल स्टेज पे खड़े हैं सब लोग। आपके 2 एग्जाम हो गए हैं, उनके अभी इंटरव्यू होने हैं। 3 एग्जाम होने हैं, IBPS PO का मेन और RRB आपका ऑफिस असिस्टेंट का मेन और IBPS क्लर्क का मेन। यदि आप अपसेट हो गए इस समय, आपकी परफॉर्मेंस अफेक्ट हो जाएगी। किसी का नुकसान नहीं होगा, सिर्फ आपके। दुनिया में इवेंट्स आएंगे चले जाएंगे, पर नौकरी के मौके आएंगे कि नहीं आएंगे ये किसी को नहीं पता। अभी आप आज की स्थिति के अनुसार एग्जाम दीजिए, सिलेक्शन होने के बाद ज़्यादा क्लैरिटी आ चुकी होगी, उस समय आप फैसला करें कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए बुरा है। अभी से अपने मन पे बुरा प्रभाव मत डालिए, क्योंकि सब कच्ची पक्की बातें हैं। हाँ, गवर्नमेंट ने रेलवे को बेचने का फैसला किया, पोर्ट्स को बेचने का फैसला किया, और भी चीज़ें बेचने का फैसला किया। दिल तो आहत है, सबका आहत है, आपका भी है, मेरा भी है, पर सरकार तो सरकार है। तो हमें क्या करना है ये वक्त ही बताएगा, पर हमें अपने में संयम बनाए रखना है और हमें अपना जो आने वाला एग्जाम है उसको खराब नहीं होने देना है। अब एक प्रश्न बार बार उठ रहा है कि सर क्या बैंकिंग और इंश्योरेंस में वैकेंसीज आएंगी? जरूर आएंगी, 100% आएंगी। बैंकिंग में भी वैकेंसी आएंगी, इंश्योरेंस में भी वैकेंसी आएंगी। कितनी आएंगी, कम आएंगी, ज्यादा आएंगी, ये अभी नहीं नजर आ रहा। आएंगी जरूर। IBPS कैलेंडर आएगा, प्रेजेंट सिस्टम से एग्जाम होगा। अब कई लोग पूछ रहे हैं सर CET के बारे में कुछ नहीं बोला इस बजट में। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये मतलब क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो बजट के अंदर डिस्कस होंगे। पिछले साल के बजट में वो बता चुके ऐसी एजेंसी बनेगी, धीरे धीरे बनती रहेगी वो एजेंसी। कब बनेगी? इस साल के अंत तक बनेगी, अगले साल के शुरू में बनेगी, बन जाएगी। पर हमें क्या करना? देखो बाहर गर्म हवाएं चल रही हैं। एज ए पेरेंट मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? मैं आपको इन गर्म हवाओं से बचा सकता हूं। अगर ये गर्म हवाएं आपके शरीर को टच कर गई तो ये आपको जला देंगी। तो मेरा क्या रोल है? मैं जो अच्छी खबरें हैं सिर्फ आपको दे रहा हूं, बुरी खबरों को अभी एनालाइज कर रहा हूं, आपको प्रोटेक्शन दे रहा हूं। मैं आपका पेरेंट हूं, मैं आपको जलने नहीं दे सकता। कई लोगों को लगता है कि सर आप ये बता रहे हैं, ये क्यों नहीं बता रहे? जब तक मुझे कंफर्मेशन नहीं होगी किसी बात की, मैं आप तक वो बात नहीं लाऊंगा जिससे आपका दिल टूटे। मैं इंतजार करने वाला व्यक्ति हूं, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में इतना मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैं बहुत परिपक्व व्यक्ति हूं। कई बार क्या होता है कि अध पक्की खबर देने से किसी का नुकसान हो जाता है। वीडियो तो वायरल हो जाएगी मेरी अध पक्की खबर देने से, पर कुछ लोगों का कैरियर खराब हो जाएगा। मैं वो नहीं चाहता। मेरा एक ही उद्देश्य है, आपका कैरियर बने और आपका कैरियर सच्चाई पे बने, ये मेरा उद्देश्य है। जब तक कोई खबर मुझे पूरी नहीं पता होगी, मैं आपके साथ शेयर नहीं करता उसको। तो मैं अपने सोर्सेज से कोशिश कर रहा हूं, जो आज की खबरें मीडिया में चल रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है और क्या उसके अंदर नमक मिर्च है, जो भी है वो जब जब मुझे खबर की कंफर्मेशन होती जाएगी मैं जरूर शेयर करूंगा आपके साथ। क्योंकि मैं जो चैनल है मेरा वो है राइट एडवाइस एट राइट टाइम। बिल्कुल सच से हम चलते हैं। पर अभी जो टाइम है आपका क्रूशियल है, ये समझ लीजिए आप। क्यों क्रूशियल है? 3 एग्जाम लाइंड अप है, 3 इंटरव्यू लाइंड अप है। जरा भी आपने अपने मन के ऊपर नेगेटिविटी को हावी होने दिया तो आपका बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। नुकसान किसी का नहीं होगा। जितने भी ये लोग बातें फैला रहे हैं इनमें कभी किसी का नुकसान नहीं होता। 2020 में भी आप देख लो कितना नुकसान लोगों ने पहुंचाया लोगों को। नेगेटिव खबरें फैला फैला के एग्जाम नहीं होंगे, कुछ नहीं होएगा, ये नहीं होएगा, वो नहीं होएगा। मैं लगातार आपको बताता रहा एग्जाम भी होंगे, सिलेक्शन भी होगी, नौकरी भी मिलेगी।
अब जो लोग उन बातों में बह गए, कितना बड़ा उनका नुकसान हो गया, उसकी परिपूर्ति कोई नहीं कर सकता। कच्ची बातों से हमें हमेशा नुकसान होता है जीवन के अंदर। जब तक चीजें सामने नहीं आती, हमें बेकार चर्चाओं में नहीं पड़ना चाहिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि अभी जो एग्जाम है उनको आप शांति से दीजिए, आपने इतनी मेहनत की है उसको दीजिए। जो खबरें आएंगी, जैसे जैसे उसकी कंफर्मेशन होएगी, आपको जरूर बताई जाएंगी। पर मुझे अभी कोई ऐसा खबर नजर नहीं आ रही, क्योंकि जो मैंने ट्विटर अकाउंट देखा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, उसके अंदर जितनी बात कही है उतनी मैंने आपको बता दिया। अब जैसे जैसे स्पीच की डिटेल आएंगी, उसके टेक्स्ट आएंगे, उसमें मैं इंटरप्रिटेशन करके जो मैं समझ पाऊंगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।